جی السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علم التجوید۔ تجوید سے متعلق میں بنیادی باتیں آپ کو بتا دوں کہ اس پر ویڈیو بنانے کی مجھے آخرکار ضرورت کیوں پیش ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں لفظ جو ہے وہ اگر اپنے مخرج سے صحیح ادا نہیں ہوتا اردو میں بول چال میں، تو اس کو بھی تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے قرآن مجید کی تو اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، چونکہ عربی کی یہ آپ سمجھ لیں کہ خوبی ہے، اگر اس کا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے مخرج سے ادا کر دیا جائے جو اس لفظ کا مخرج نہیں ہے تو معنی اور مفہوم بالکل بدل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس مخرج سے ہم نے اس کو ادا کیا اس کا معنی انتہائی غلط ہے، جس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ثواب کی بجائے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو تجوید کا یہ جو مختصر میں نے کورس ترتیب دی ہے، اس سے مراد یہ ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو بھی لوگ اس کو جو دیکھیں وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو وہ حاصل کر لیں، وہ ابتدائی باتیں تو کم سے کم جان لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور جتنی بھی کوشش ہو سکے وہ قرآن پاک میں اس طرح کی اغلاط سے بچ سکے۔ سب سے پہلے علم تجوید کا، اور اس کے لیے میں نے خاص طور پہ سلائیڈز بنائی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور یہ میرے سے لے بھی سکتا ہے، اور نمبر آپ کو پتا ہے کہ میں نیچے سکرین پر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس نمبر کے اوپر بھی اپنا رابطہ کر کے تو میرے سے نوٹس لے بھی سکتے ہیں۔ تجوید کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کرنا اور عمدہ کر کے پڑھنا۔ اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، علم تجوید کہا جاتا ہے۔ اب تجوید کے حوالے سے جو اگلی باتیں ہیں بنیادی، ہم اس کو ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس کو لفظی اعتبار سے دیکھیں تو لفظی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ لیکن قرہ حضرات اس کے بارے میں انتہائی جو ہے وہ سینسیٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم و تجوید جو ہے اس کی غرض و غایت اگر دیکھی جائے تو یہ جاننا، اس کا علم و تجوید کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ عام بول چال، اگر آپ عربی میں عام لوگ بول چال جو کرتے ہیں اس میں اگر مخارج کا خیال نہیں رکھتے تو برا تو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں حرج بھی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ عربی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان قواعد کو جانیں۔ اس کے لیے جس طرح کہ اردو کا لفظ ہمارے پاس، میں ایک مثال یہ ریڈ کی ہوئی آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لفظ ہے کراچی، لیکن اگر بیرون ملک سے کوئی فورن سے آیا ہوا شخص جو ہے جس کو انگریز کہتے ہیں، اگر وہ اس کو بولے گا تو وہ آپ کو پتا وہ کراچی نہیں بول سکے گا، وہاں پر چونکہ انگریزی میں رے کو اڑے بولتے ہیں، اور یہی لفظ جو ہے کراچی سے کراچی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو کوئی عربی شخص بولے گا تو چونکہ وہاں پر چے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر چے کی جگہ شین استعمال ہوگی جو کہ بن جائے گا کراتشی۔ اور اسی طرح اگر آپ پاکستان کا لفظ دیکھیں، اب چونکہ عربی میں الف بے پے تو ہوتا نہیں ہے، الف با تا ہوتا ہے، تو وہ پھر تا کی جگہ کیا لگا دیتے ہیں، پا کی پے کی جگہ کیا لگا دیتے ہیں، با، اور پاکستان کو پڑھتے ہیں الباکستان۔ یہ دیکھیں سننے میں تو ہمیں واقعی تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے، لیکن اس سے پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے اس کے معنی کے اعتبار سے، اگر اس میں تغیر تبدل دیکھیں تو اس کی میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ ہے قل، فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے یا وہ اللہ یکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں جو لفظ قل ہے، چونکہ یہ موٹا قاف ہے، پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو باریک قاف پڑھ دیا جائے اور پر نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلو یا کل، یہ دوسرا کل آ جاتا ہے، اور کلو جو چھوٹے کاف سے لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو۔
अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक लफ्ज का माना है कुल खाओ, कुल कह दो, और कुलू का माना है खाओ। तो अब आप ये देखिए कि अगर कोई शख्स मोटे वाले काफ को, पुर वाले काफ को बारीक वाला काफ पढ़ देता है तो उससे हर्ज क्या होगा। अब तर्जुमा इस तरह बन जाएगा, नाउज़ बिल्लाह, कुल खाओ वल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह यकता है। तो माना इतना ज्यादा तब्दील हो जाता है। और सिर्फ ये बात एक मिसाल तक नहीं है, इस मिसाल में अगर आप ये देखिए, ये नीचे दूसरी लाइन में देखिए कि मैंने इसमें एक और बात जिक्र की है कि कल्ब जो है वो 2 नुक्तों वाला काफ, मोटा काफ जिसको कहते हैं, कल्ब होता है दिल। लेकिन अगर कोई शख्स इस कल्ब को बारीक काफ पढ़ दे, कल्ब पढ़ दे, तो उस बारीक काफ वाले कल्ब के साथ ये मिसाल में आप देखें कि उसका माना होता है कुत्ता। अब आप दिल दिल लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत जो प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत है उससे लफ्ज का बिल्कुल माना तब्दील हो गया। इसी तरह नासारा या नस्र का माना होता है मदद करना, लेकिन अगर इस स्वाद को सीन पढ़ दे तो उससे मुराद क्या होगा, गिद्ध जो मुर्दार खाती है। इसी तरह ये तगय्युर और तबद्दुल कुरान पाक में वाक़े हो जाते हैं तलफ़्फ़ुज़ के दुरुस्तगी न करने की वजह से। यहाँ पर नाजरीन और सामईन आप ये देख सकते हैं, मैंने कुछ तिलावतों को तरतीब दी है और इसमें मकसद ये है ये बताना कि अगर इन लहजों में कुरान पाक पढ़ा जाएगा तो ये सरासर हराम है। जिस तरह सबसे पहला जो है वो है, अगर हदर में आप इस कदर जल्दी पढ़ते हैं कि हरूफ समझ ही ना आए तो ये बिल्कुल ऐसे पढ़ना हराम है। और ऐसे अब रमज़ान शरीफ चूंकि आ रहा है तो रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर कुर्रा हजरात इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर आप देखें कि गुन्ना हर बात में, यानी कि आवाज़ को बिल्कुल नाक में ले जाना और नाक पे पढ़ना। जिस तरह कि मैं थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के दिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आप पूरी की पूरी आवाज़ को नाक में ले गए तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कोई लफ्ज़ अगर बिल्कुल हल्का पढ़ने वाला है आप उसको बड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। इसी तरह गाने की तर्ज में पढ़ना और बगैर कि वक्फ जो है वहां पर नहीं है तो वहां पर वक्फ कर देना, हर जगह आइन लगा देना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो जरा सी बात हो तो उसमें हर बात में ना आइन लगाने की कोशिश करते हैं, और हमारे कुछ लोगों को पता भी है कि वो कौन से लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये जो 10 कुर्रा जिनको सबा आशरा भी कहा जाता है, सबा से मुराद ये इमाम को साई तक है, ये 7वें नंबर तक, लेकिन कुछ लोग जो है ये 3 कुर्रा को और भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने उनके नाम भी दर्ज कर दिए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो हम किरात पढ़ते हैं वो है इमाम हफ्स की किरात, जो कि नंबर 5 पर मैंने इसको दर्ज किया हुआ है। इन्होंने ये किरात रवायत की है इमाम शोबा से, शोबा ने रवायत की है इमाम आसिम कूफी से। तो हमारी जो किरात है पाकिस्तान में वो हफ्स चलती है। अब बाकायदा तौर पर मैं इसका आगाज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ और जिनसे आप जो कम से कम मोटी मोटी गलती से आप बच सकें। ये यहाँ पर देखिए आप हरूफे जो तहजी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर पढ़ने में मैं आपको बता दूं कि जब अरबी का लफ्ज पढ़ा जाएगा तो उसके साथ अलिफ की प्रोनाउंसिएशन जरूर आती है। जैसे कि देखें साउंड जरूर आएगा, हम पढ़ते हैं उर्दू में अलिफ बे पे ते टे से इस तरह, लेकिन जब अरबी में इसको पढ़ा जाएगा तो वो अलिफ की बजाय अलिफ भी पढ़ा जा सकता है और हमजा भी। अब यहाँ पर बे नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे बा पढ़ेंगे। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल लाल रा जा सीन शीन साद वाद ता वा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून हा वाव या, ये हरूफ हैं और इनके नाम हैं। अब इंशाअल्लाह ताला ये हरूफ शमसिया और कामरिया है, ये आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो शमसिया है उनके सामने जो अलिफ लाम आती है वो साकिन हो जाती है, नहीं पढ़ी जाती। जिस तरह अर्रहमान, इसमें अलिफ लाम है लेकिन ये अलिफ लाम पढ़ी नहीं जाती।
इसी तरह अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमान में देखें तो वहां पे भी अलिफ लाम है, वो नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह अन्नूर है तो यहाँ पर अल नूर या अल समा नहीं कहा जाएगा बल्कि अन्नूर और अस्समा, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जो कमरिया होते हैं उसमें अलिफ लाम पढ़ी जाती है। अब आ जाते जी मखारिज, जो हमारा मेन आज का समझने के टॉपिक है। मखारिज में वो कहते हैं कि जी मखारिज उसको कहते हैं, यानी कि मखारिज मखरज की जमा है और इससे मुराद ये होता है कि कोई निकलने वाली जगह, माना निकलने की जगह। और कुर्रा कहते हैं कि हर लफ्ज को, उसकी आवाज को वहां जहां से पैदा होती है, जहां से निकलती है, उसको क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं। अच्छा, अहले फन के नजदीक ना जी 29, ये मैंने रेड किया है, 29 हरूफ के तकरीबन 17 या 18 मखारिज बताए जाते हैं और ये मशहूर है। अब यहाँ पर मैंने मखारिज की कुछ जिक्र किया है। इसमें सबसे पहला हमारा हल्क आ जाता है, ये जो गला है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये गला, इसके 3 हिस्से हैं। अब एक है ये अक्सा हल्क, उसके बाद वस्त हल्क और फिर अदना हल्क, ये 3 हमारे गले के हिस्से होते हैं। अब इसमें से जो अक्सा हल्क है, यानी कि हल्क की जो जड़ है, बिल्कुल इब्तिदा जहां से हो रहा है, वहां से हमारे 2 हरूफ होते हैं, पढ़े जाते हैं। उनमें कौन कौन से, हमजा और हा। अब देखिए, हमजा और हा जब हम कर रहे हैं, हमजा और हा, तो ये सीने की तरफ साउंड जा रहा है, यानी कि ये सीने से बिल्कुल जो टॉप पे, यहाँ से हमारा जो गला शुरू होता है, हल्क शुरू होता है हमारा, वहां से ये 2 वर्ड अदा होते हैं, वस्त हल्क। अब ये जो वस्त हल्क है, ये हमारे हल्क का दरमियानी हिस्सा, इस दरमियानी हिस्से से ये 2 वर्ड अदा होते हैं। और ये कौन से हैं, आइन और हा, आइन और हा। आप ये देखिए, इसका साउंड यहां से आ रहा है। इसी तरह अदनाए हल्क है, इसका गाइन, ये बिल्कुल अब हल्क का ऊपर वाला हिस्सा चला गया। और खा, गाइन और खा। आगे है लिसान, लिसान माना जुबान। अब जुबान के वो कहते हैं 10 पोर्शंस हैं, 10 पोर्शन हैं, और इससे 18 वर्ड जो है वो अदा होते हैं। यानी कि जबान आप देखें कि सबसे ज्यादा हरूफ जो है वो जबान की मदद से अदा होते हैं। तो अगर आपने जुबान को उस लफ्ज के मखरज के सही जगह पर ना रखा तो लफ्ज बिल्कुल तब्दील हो सकता है। जिस तरह के सा, ये 3 नुक्तों वाला जो होता है, अलिफ बा ता सा। अब सा को, जो जुबान को हमने सनाया उलिया के साथ रखना होता है, सा। अगर आप सा ऐसे नहीं रखते तो क्या पढ़ेंगे, सा, तो सा क्या हो जाएगा, सीन बन जाएगा। तो सा का माना कुछ और होगा और सीन का माना कुछ और होगा। अब यहाँ पर लिसान के देखें कि अक्सर लिसान, बिल्कुल लिसान यानी कि जुबान की जड़। इसके आगे मैंने तस्वीर भी बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से जान लें। अक्साई लिसान जबान की जड़ से बिल्कुल 2 हमारे वर्ड अदा होते हैं। कौफ, यानी कि जबान की जड़ ऊपर ताल्लुक सा लगती है तो कौफ, और इसी तरह जो छोटा काफ है वो भी वहीं से अदा होता है। उसके बाद वस्त लिसान है, वहां से जीम, शीन और या। और हाफा लिसान है, वहां से वाद। ये बिल्कुल ना जबान की। अच्छा, ये वाद के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करता चलूं कि हमारे यहाँ ये जो लफ्ज वाद है, इसका अरबी में, पूरी अरबी में सबसे मुश्किल मखरज है। और तकरीबन कुछ कुर्रा तो ये कहते हैं कि इसका सही मखरज अदा कर देना ही असल में तजवीज है। यानी कि बाकी लफ्ज तो इतने आसान है कि हर शख्स अदा कर सकता है, लेकिन जो लफ्ज वाद है, इसका मखरज इंतहाई मुश्किल है। ये कभी कभी जबान के जो ये करवट होती है, ये जो किनारा होता है, ये आपके दाढ़े जो हैं, अजरास दाढ़े हैं, उनके साथ लग के निकलती है इसकी साउंड। और कभी कभी ये पूरी जुबान भी लग जाती है। लिहाजा अगर दोनों जुबान की ये जो साइड्स हैं, ये अगर लग के लफ्ज अदा हो जाए तो मैं तो कहता हूँ क्या कहने। और इस दुआ के ऊपर आप यकीन जानिए कि कत्ल भी हो चुके हैं, मारपीट भी हुई है इस मखरज के ऊपर, यानी कि फसादात भी हुए। लोग अगर दौद को सही मखरज से अदा नहीं करते तो चूंकि माना बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है, कुछ लोग पढ़ जाते हैं वाला ज़ालिम। अब ये ज़ाल जो है वो तो दौद का मखरज ही नहीं है, वो तो तोहे जोए वाला जो ज़ा है उसका मखरज है। इसी तरह कुछ लोग पढ़ जाते हैं वाला दालीन। आप गलत दालीन में आप देखें कि ये दुआ तो है नहीं, ये तो दाल है। तो यहाँ पर आप दाल का मखरज अदा कर रहे हैं, दुआ का तो कर ही नहीं रहे।
अब यहाँ पर जो दुआत का मखरज है इंशाअल्लाह ताला इसकी बाकायदा मैंने वो बनाया हुआ है एक चार्ट सा, जिसको आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता लगेगा। अब तरफे लिसान साइड पे जो लिसान की जुबान का हिस्सा है उससे लाम नून वा ये चीजें, अच्छा यहाँ पर जो है मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता, लेकिन आगे चल के इनकी जो मैंने तस्वीर बनाई हुई है उनके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हल्क का हिस्सा, जुबान का हिस्सा। अब चूंकि हमारे मुंह के अंदर जुबान और हल्क के अलावा ये जो दांत है ये भी मौजूद है। अब इनके भी नाम हैं, अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो क्या ही कहने हैं। लेकिन अगर आप नाम याद नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये जहन में रखिए कि ये वाला जो लफ्ज है ये फ्रंट वाले दो दांतों से अदा होगा अगर जुबान लगेगी वहां पर। जिस तरह ये देखेंगे फ्रंट वाले दो दांत हैं, इनको अगर मैं होंठों से मिलाऊं तो फा अदा होता है। अब फा तो नहीं कर सकते, फा करेंगे तो ये सनाया उलिया के दांत जो है ये मेरे होंठों के साथ मिले हैं, फा, तो ये फा अदा हुआ है। अगर आप इसका नाम याद कर लें दांतों के तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी याद करते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बताया जाता हूँ ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनको सनाया उलिया कहा जाता है, और दो नीचे के जो दांत होते हैं, चूंकि हमारे यहाँ ये देखें ना ये दांतों की दो लाइनें होती है, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाले दांतों को ये फ्रंट पे जो दो हैं इनको सनाया उलिया कहा जाता है। इनके बिल्कुल जो मध्य मुकाबले जो नीचे वाले दो दांत हैं उनको क्या कहा जाता है, सनाया सुफला कहा जाता है। इसी तरह इनके बाजू में ये साथ ये दांत है, ये इसको रुबाई कहा जाता है, और उसके साथ वाले जो होते हैं नीचे वाले उनको कवातेह कहा जाता है। इसी तरह आगे इनकी जो नोकदार है, ये हमारे नोकदार दांत, आइए देखिए ये वाले दांत जो होते हैं नोकदार होते हैं तो इनको इन्याब कहा जाता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो चार हमारे जो दांत है उनको दवाहिक कहा जाता है। आगे चलें, इसी तरह ये दूसरे जो दाढ़े हैं हमारी, उसके साथ अब जो दाढ़े शुरू हो जाती हैं वो बता रहे हैं कि इनके साथ के जो तीन तीन दाढ़े हैं दाएं और बाएं ऊपर नीचे इनको तवाहिन कहा जाता है, जो ग़िज़ा पीसने के लिए होते हैं। और सबसे आखिर में वो दाढ़ होती है कि जिसको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नवाजिज कहते हैं। और दूसरी बात, इन तमाम यानी कि दवाहिक को, तबाहिन को और नवाजिज को अजरास भी कहते हैं, यानी कि दाढ़ें। अब इसके लिए जो है वो एक शायर ने शेर भी लिखा हुआ है ताकि बच्चों को वो याद हो सके। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2 यानी कि 32, सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है इनियाब 4 और बाकी रहे 20 के कहते हैं खुर्रा अजरास इन्हीं को। दवाहिक हैं 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। तो ये शेर में इन्होंने पूरे उनका जो है दांतों का हिसाब किताब बता दिए। अब ये देखें, अब ये दांतों की तादाद जो है ये आपके सामने मैंने नक्शा शायद आपको नजर आ रहा हो, इस नक्शे में आप देखें कि फ्रंट वाले जो दो दांत हैं उनको कहा जाता है सनाया, और इसी के मध्य मुकाबले जो नीचे वाले दांत हैं वो सनाया उलिया और वो सुफला है। अब ये ये देखें, ये जो सनाया है और इसके साथ ये देखें ये रुबाई है, और ये वाला जो है ये जो पीसने वाला या नोकीला जो होता है वो इनियाब है। यहां से हमारी दाढ़ें शुरू हो रही हैं, 1 2 और 3 ये हैं दवाहिक, और ये चौथी भी इसमें शुमार होगी, और उसके बाद ये अकल दाढ़ वाली जो नवाजिस हमने पढ़ी है। इसका नक्शा भी मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं इंशाल्लाह आपको पेश कर दूंगा। अब ये जुबान के भी हमने हिस्से पढ़े थे कि ये जड़ वाला यानी कि अक्साउल लिसान जुबान की इब्तदा है, जड़ है, उसके बाद वस्ते लिसान है, फिर इसी तरह तरफे लिसान है, रअसुल लिसान है जुबान का सिरा, और हाफा लिसान है। तो ये जुबान के कुछ हिस्से और उनके नाम। लेकिन अब बिला ताखीर हम जो है लफ्ज को, मखरज को हम अदा करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इसको इस अंदाज में पढ़ें कि हमारे पास ये सारे, हमें ये कम से कम ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मखरज नंबर 1 है, और मखरज नंबर 1 में ये तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अलिफ और वाव और या, ये जौफे दहान यानी कि मुंह का वो हिस्सा जो खाली होता है अंदर से, वहां से इन तीनों हरूफ को अदा किया जाता है। उसके बाद मखरज नंबर जो 2 है अक्साए हल्क। अब ये जो मैंने सबसे पहले आपको जो मैंने पढ़ के बताए थे, सुनाए थे, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए जरा इस चार्ट के अंदर अक्साए हल्क यानी कि हल्क का पिछला हिस्सा जो सीने की तरफ होता है, और यहाँ पर ये तस्वीर बनी हुई है। अगर आप ये
मेरा माउस बआसानी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा साथ होता है सीने के, यहाँ से दो वर्ड अदा होते हैं, हमजा और हा, ठीक है जी, हमजा और हा। इसी तरह आइन और गैन है, ये इन्होंने वस्ते हल्क दरमियान वाला हिस्सा, ये हल्का से इसको ब्लू भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। इस तरह अदरा हल्क हल्का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, वहां से गैन और खा अदा होती है, ये इसको यहाँ से इन्होंने हल्का सा नीला भी किया हुआ है, तो ये हरूफ यहाँ से अदा होते हैं। इसी तरह आगे देखें तो मखरज जो मखरज नंबर 5 और 6 है, यानी कि जो कव्वे के जो हमारा ये जो कव्वा कहलाता है, इसके मुत्तसिल ज़बान की जड़ जब ऊपर वाले तालु के साथ टकराती है तो इससे काफ अदा होता है, मोटे वाला, जिसना अल मुस्तकीम। और काफ जो बारीक वाला होता है वो भी तकरीबन इसी के जरा सा नीचे हट कर इसके वो काफ अदा होता है, और जिसना मालिकी, मालिकी, मालिकी नहीं पढ़ेंगे, ये मालिकी लफ्ज आएगा। अब ये देखें ना तस्वीर में कि जहां पे ये काफ लिखा है वहां पर उन्होंने उस एरिए को हमारे थोड़ा सा ब्लू किया हुआ है ताकि वो पता लग सके। काफ कव्वे के मुत्तसिल जबान की जड़ यानी ऊपर वाले तालु के टकराव से पैदा होती है। इसी तरह काफ है वो थोड़ा सा, ये देखिए वो काफ यहाँ से अदा हो रहा है और काफ बिल्कुल ये टॉप से अदा हो रहा है। आगे चलते नहीं, सबक नंबर हमारा 6 और मखरज नंबर 7 है। तो इसमें अब जो लफ्ज है हरूफ शजरिया भी इसको कहते हैं, यानी कि जबान के दरमियानी हिस्सा और इसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, यहाँ से 3 वर्ड साउंड अदा होते हैं। उसमें सबसे पहले है जीम, और यहाँ पर इसकी मिसाल भी दी हुई है, हा जजतुम अश-शैतान। इसी तरह जयशुन अल हुस्नैनी, ये इसकी मिसाल दी हुई है। मखरज जो जीम है अगर आप देखें तो बिल्कुल टॉप पे है जीम, यानी कि जुबान का आपका जो है वस्ते जुबान इसके बिल्कुल मुकाबिल ऊपर के तालु के साथ जब वो टकराएगा जीम, ये जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु से जब लगेगा तो जीम, यानी कि यहाँ पर अगर तस्वीर में आप देखें तो ये बिल्कुल टॉप से थोड़ा सा पीछे करके वस्ते लिसान। और अगर यही जुबान का आप ये वाला कॉर्नर देखें तो यहाँ से क्या अदा होता है, शीन, शीन, ये तकरीबन वही है। और आगे आगे है जी मखरज या का, तो ये आप देखें सेम वही चीज है या, यानी कि ये तीनों हर्फ कौन कौन से, जीम, शीन और या, ये तकरीबन तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मखरज नंबर 8, और ये सबसे मुश्किल जो मैं आपसे अगर मखरज कहूँ तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। मखरज नंबर जो है 8, अगर इसमें देखें तो लफ्ज वाद, अब ये वाद जो है इन्होंने यहाँ पर दोनों तस्वीर बना के पेश कर दी है। हाफा लिसान है और इजरा से औलिया की जड़ है, यानी कि ये जो ऊपर वाली ये देखें इन्होंने ये इधर से जुबान ब्लू की हुई है और इधर से ये तस्वीर मैंने दांतों की जो है दाढ़ों की वो ब्लू की हुई है। इससे मुराद क्या है कि ये जो जुबान है ये कभी कभी दोनों के साथ लग के भी इसका साउंड अदा हो जाता है और कभी कभी सिंगल के साथ भी हो जाता है। जैसे ये देखिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये लफ्ज इस तरह अदा होता है और इसको अदा करने में बहुत कुर्रा जो है, कम से कम पाकिस्तान में बहुत कुर्रा जो है वो बेचारे मार खा जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मखरज है लाम का, और लाम का अगर आप मखरज देखें तो जबान का जो है वो बिल्कुल किनारा माँ कुछ हिस्सा है हाफा, यानी कि जबान की करवट के जब सनाया और रुबाई और अनियाब के दवाहि के मसूड़ों की से किसी कदर तालु की तरफ माइल होकर टक्कर खाए तो लाम अदा होता है। लाम, लाम, ये आप देखें कि ये जबान का ये वाला हिस्सा इनके बिल्कुल कॉर्नर लाम ये ब्लू है, और इधर से ये अगर आप चार्ट में देखें तो दांतों के जो हमने ब्लू किया हुआ जिस हिस्से को, वहां पर जुबान जब लगेगी तो लाम अदा होगी। अक्सर लाम पीछे से यानी कि जबान की नोक तालू से लगा देते हैं, तालू से इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद आगे है जहां पर हमने इसको बयान किया हुआ है। इसी तरह नून है और जबान का किनारा माँ कुछ हिस्सा हाफा, यानी कि जो फ्रंट वाले जो दांत हैं सनाया और रुबाई और इनियाब के मसूड़ों से किसी कदर तालु की तरफ माइल होकर टक्कर खाए तो इनसे क्या होता है,
नून अदा होता है, नून। और ये बांसे से भी आएगा, चूंकि इसका वो गुन्ने से ताल्लुक है, तो नून, नून, ये इस तरह अदा किया जाएगा। अब आगे आ जाते हैं जी, जो तरफे लिसान है, महापुश्त लिसान, जिनकी जुबान की जड़ जो है, जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से तालु की तरफ माइल होकर टक्कर खाएगी तो रा अदा होगा। क्या होगा? रा, रा। ये रा ऊपर वाले ये दांतों की मसूड़ों से टकराएगा तो रा अदा होगा, रा। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है क़ा, दाल और ता। ये जबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से जब लगेगी तो ये दोनों तीनों वर्ड अदा होंगे। क़ा, दाल, ता का है, यानी कि जबान की नोक जब सनाया उलिया की यानी ऊपर वाले जो दो दांत हमारे फ्रंट वाले की जड़ को लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। और इन तीनों हरूफ को नताइया भी कहा जाता है, चूंकि ये एक ही इनका क़ा, दाल और ता, इसलिए तीनों का एक ही मखरज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वा और जा और सा। ये तीनों जो हैं वो असल में हमारे यहाँ तुलबा क्या करते हैं, जो जा है वो जा को जा पढ़ जाते हैं, जबकि जा दूसरा होता है, ये जा होता है। इसमें आप सीटी की आवाज़ नहीं निकलती। इसी तरह सा नहीं करते, सा करते हैं, और ये जा करते हैं, और ये जा नहीं करते। ये लफ्ज़ों को समझने की ज़रा कोशिश करें। वो कहते हैं जी जा, वा और जाल, जाल और सा का है। जबान की नोक जब सनाया और ये इनके ऊपर वाले जो दो दांत है इनकी नोक से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। और इन तीनों हरूफ को लस्विया भी कहते हैं। लस्विया यानी कि माना मसूड़े के हैं। चुनाचे लस्विया मसूड़ों के पास वाले अंदरूनी किनारे से निकलने वाले हरूफ हैं, ना कि इस नीचे वाली नोक से जो मसूड़ों से दूर है। तो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये आपका जो ज़ा है और ज़ा है और सा है, ये सा, सा बिल्कुल किनारा और ऊपर वाले दो दांतों को ये मस कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मखरज नंबर 14 सौद और जा और सीन। ये अगर आप देखें इसमें जा और सीन जो है वो तकरीबन एक ही मखरज में फॉल कर रहे हैं। इसी तरह सौद है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसका जबान का सिरा सनाया सुफला नीचे वाले दो दांतों का किनारा माँ कुछ इत्तसाल सनाया उलिया ऊपर वाले कुछ दांतों का है। इन हरूफ को सफरी कहते हैं, सफीर कहते हैं। और यहाँ इत्तसाल से मुराद सनाया उलिया का जबान की सिरे के बिल्कुल ताल्लुक व इत्तसाल से मुराद नहीं है, बल्कि सनाया उलिया का सनाया सुफला से करीब व इत्तसाल मुराद है। बस इन हरूफ को अदा करते वक्त जबान की नोक को सिर्फ नीचे के अगले दो दांतों के किनारे से लगाना चाहिए, इस तरह के ऊपर के दोनों से जुदा रहें, क्योंकि अगर जुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों से लग जाएगी तो हरूफ अपनी असली सिफ्त के साथ अदा न हो सकेंगे। ठीक है जी, सौद, सौद, जा, जा, सीन। अब आप ये देखें कि जो जबान की नोक है नीचे वाले मसूड़ों के साथ लगी हुई है, ऊपर सौद, सौद ऐसे नहीं हम कर रहे, जा ऐसे नहीं कर रहे। देखिए रा में हमने ऊपर वाले दांतों को इस्तेमाल किया था, अब इसमें जुबान की नोक नीचे वाले मसूड़ों के साथ लगेगा तो अदा हो जाएगा सौद। इसी तरह सीन, इसी तरह जा, ये वर्ड का मखरज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो मखरज नंबर 15 और वो क्या है जी हमारे पास फा। फा बहुत आसान है। अगर आप तस्वीर में देखें तो ये होंठ नीचे वाले होंठ का कुछ हिस्सा ब्लू किया हुआ है और ये ऊपर वाले दांत हैं, यानी कि ऊपर वाले जो सनाया उलिया हमारे जो दो दांत होते हैं अगर वो नीचे वाले ये होंठ के साथ मिलते हैं तो क्या अदा होता है, फा, फा। नेक्स्ट हमारे पास वाव है और बा है और मीम है। अच्छा, इन तीनों जो वर्ड हैं इन तीनों का काम किसी दांत के साथ नहीं है, बल्कि इन तीनों का काम किससे, हमारे होंठों से है। यानी कि होंठों की गोलाई, होंठों का बार बार मिलाना, इन चीजों से ये वर्ड सही अदा होते हैं। असल में बच्चे कुछ क्या करते हैं, वो करते हैं वाओ, वाओ, वाह वाह। ये लफ्ज कतई तौर पे नहीं होता, ये लफ्ज है वाओ, यानी कि होंठ दोबारा आपके गोल होंगे, स्टार्ट से होके फिर एंड पे जाएंगे। तो वाओ, बा, मीम, ये लफ्ज दोबारा जुड़ रहे हैं दोनों, तो ये मीम और बा और वाओ का मखरज होंठ है।
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی خشوم یعنی کہ ناک کا بانسا، یہاں سے نون غنہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تنوین ہے یہ ساکن اور نون جو یہ نون غننے کا جو مخرج ہے اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ یہ یہاں پر آپ دیکھیں تصویر میں کہ زبان ہے نون نون، یہ ہلکا سا اس کا پورشن بلو ہے، یہ ثنایا اولیاء کے جو جڑے ہیں جس کو ہم مسوڑے بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ لگے گا تو کیا ادا ہوگا؟ نون نون، اور اس کا تھوڑا سا ناک کے بانسے میں یعنی کہ ساؤنڈ ضرور جائے گا۔ یہ آج کا جی ہمارا مختصر سا تعارف تھا، اور میں یہی امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ جن لوگوں نے اس کو کوشش کی کہ دیکھا جائے پڑھا جائے، یاد رکھیں جی ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور ان کو راضی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقین جانیے بڑا مشکل ہونے والا ہے ہمارے لیے، چونکہ اب ہمارے اگر طلباء اس چیز کی طرف نہیں وہ مائل ہوتے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کو تو ہم نے غریب کر دیا۔ آج کا صرف مقصد، اگرچہ ظاہری بات ہے یہ جو تمام چیزیں ہم نے کی ہیں ان کی جب تک مشق نہ کی جائے تب تک فائدہ بالکل نہیں۔ آپ طلباء جو ہے اس کی مشق بھی کریں اور کوشش کریں کہ جہاں پر ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے وہی پڑھیں، چہ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح ہر جگہ ہا نکال دینا، ہر جگہ الف لگا دینا، ہر جگہ میم، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل قطعی طور پہ کم سے کم قرآن کے معاملے میں اس کو ایسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ امید ہے کہ دوستو آج کا یہ جو ہمارا تجوید کا لیکچر تھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ بھی ہے کہ آپ اس کا بہت ہی بیسٹ اور اچھا رسپانس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی خود بھی پریکٹس کریں گے۔ ویڈیو کوالٹی کے لیے میں آپ سے پھر آج معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ ٹاپک ایسا تھا کہ مجھے یہ لیپ ٹاپ پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے اکثر جو بلٹ ان کیمرے ہوتے ہیں وہ اتنے زبردست نہیں ہوتے۔ خیر ابھی جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔